Assalamualaikum everyone, welcome back to this channel. So in the previous lecture we are going to discuss about the analytical geometry. So this is from the class number 12 math, and this is exercise 4.1, and we have discussed about the coordinate system and about its coordinates, and we have discussed about the distance formulas. We discussed that both of these formulas are correct whether you write x2 minus x1 or x1 minus x2. Similarly cases with the y, so both of these formulas are same and their answer will be equal and their answer will be positive. Now we are going to discuss about the second thing, which is our ratio formula. So let कर लेना है आप लोगों ने that you have 2 points A and B. The plane and the coordinates of the point C divide the line segment AB in the ratio K1 and K2. So this is the formula of it. Now you have to see a diagram here in order to clear this concept. So I have draw here again a coordinate system. So this is the point A, this is the point B. Now in this line segment I have insert another point. This point is called as P. You can give it as a name of C. So now we have to find out the ratio between point A and point B. So therefore, in order to find the ratio between them, we will apply this ratio formula. Okay, so this ratio is simple, that we divide K1 divided by the K2, and this the answer will be came out by it. Now it has some conceptual points or important notes which I have written here. So these are the three notes which I have written. So first note is that if the distance of AP and PB, so what is AP? AP is the distance between the point A and the point P, and the point PB is the distance between the point B, P and B. Okay, so we have to find this distance. So they, if they have same signs, it's what is mean that if, let's suppose I found the distance between these 2 points and it came with the 4 centimeter. Okay, and now I will measure the distance between these points, and it came with 3 नहीं, इसको 2 सेंटीमीटर कर लेते हैं. सो अब आप देख सकते हैं कि दोनों के साइन पॉजिटिव है, दोनों के साइन सेम है. अगर दोनों के साइन सेम होंगे तो उनका रेशो भी पॉजिटिव होगा. यानी अगर मैं 4:2 करूँगी, यानी K1:K2 करूँगी, तो आंसर भी इसका 2 पॉजिटिव ही आएगा. ठीक है. दूसरा, इसका दूसरा मतलब यह है कि आपका जो पी पॉइंट है वो ए और बी के दरमियान में लाई करता है, यानी ये पी पॉइंट ए और बी के दरमियान में है. अगर आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है और साइन सेम है तो आपका ये है. और दूसरा, इसको हम दूसरा नाम ये देते हैं कि हमने ए बी को इंटरनली डिवाइड किया है. ठीक है. अब हम देख लेते हैं कि अगर डिस्टेंस जो ए और पी बी के दरमियान में उनके ऑपोजिट साइन है, यानी अगर एक +4 सेंटीमीटर है और दूसरा -2 सेंटीमीटर आ जाता है. तो अब ये आ गई है ऑपोजिट साइन, एक पॉजिटिव साइन है, एक नेगेटिव साइन है. अब इनकी रेशियो नेगेटिव आएगी, यानी अगर मैं 4:-2 करूँगी तो -2 इसका आंसर आएगा, +2 कभी भी नहीं आ सकता. तो इसका मतलब क्या है कि आपका पी पॉइंट बियॉन्ड द ए बी है, यानी अब पी पॉइंट आपका यहाँ पर नहीं है. ठीक है. अब आपका पी पॉइंट कहीं यहाँ पर है. ठीक है. सो इस वजह से ये नेगेटिव ही आ रही है, और इसको हम कहते हैं कि हम लोगों ने एक्सटर्नली डिवाइड किया लाइन ए बी को. ठीक है ना, एक्सटर्नली यहाँ पर डिवाइड हो गया क्योंकि पॉइंट पी अलग से है. सो ये देखिए यहाँ पर मैंने रेशियो दी है ए पी और पी बी की. K1 और K2 आया इन द फर्स्ट केस जब दोनों के साइन सेम थे तो पॉजिटिव में आया है, लेकिन जब जैसे ही साइन ऑपोजिट्स हो हैं तो नेगेटिव में आंसर आता है. और क्योंकि हमने इनको एक्सटर्नली डिवाइड किया, इधर हम इंटरनली डिवाइड करें, इधर हम एक्सटर्नली डिवाइड करें. अब आप देख लें कि अगर लेट्स सपोज के ये K1 K2 1:1 रेशियो 1:1 आ गई है इसकी. ठीक है. सो क्या मतलब होगा, P आपका मिड पॉइंट है ए बी का. अब ये ए बी के 2 पॉइंट्स थे और मैं बिल्कुल इसके मिड में P पॉइंट अज्यूम कर लेती हूँ. सो अब यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो भी 2 सेंटीमीटर बनेगा, और यहाँ पर भी डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर बनेगा. दोनों को जब हम इनका K1 और K2 निकालेंगे, सो K1 क्या है 2,
कि 2v2 है, दोनों कट हो जाएंगे, 1:1 आ गया है। इट्स मीन क्या है कि P अब आपका मिड पॉइंट हो चुका है। और मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के ये फार्मूलेज हैं, x=x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2। सो किसी भी पॉइंट का अगर आपने मिड पॉइंट निकालना है तो आप ये फार्मूला लगाएंगे और आपके मिड पॉइंट का आंसर आ सकता है। ठीक है, सो ये थे हमारे कुछ इन्फॉर्मेशंस, कुछ फार्मूलाज जो कि मैंने आपको बताने थे। अब हम चलते हैं जी 4.1 के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अच्छा बच्चों, सो अब 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को दिया गया और आपने बताना है कि किस कोऑर्डिनेट में ये पॉइंट होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने कहा कि एक्स पॉइंट है और वो 0 से बड़ा है। ठीक है, जिसकी तरफ ये मुंह खुला होगा वो बड़ा होगा। सो अब मैं यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बना रही हूँ। सो यहाँ पर हमारे पास 0 होता है, यहाँ पर x हमारे पास पॉजिटिव होता है। सो इट्स मीन क्या है कि x की वैल्यू कुछ भी यहाँ पर भी आ सकती है, मतलब इस कोऑर्डिनेट पे भी हो सकता है, इस कोऑर्डिनेट पे भी हो सकता है। सो उन्होंने सिंपल इनको कह दिया कि राइट हाफ प्लेन। सो ये पॉइंट का होगा राइट हाफ प्लेन के ऊपर ये पॉइंट पाया जाएगा। ठीक है, ये सो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। आपने बस इसका ये लोकेट करना है और इसका कोई सॉल्व करने का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उन्होंने कहा है कि x तो बड़ा है 0 से, साथ ही साथ y भी बड़ा है 0 से। सो x की वैल्यूज़ पॉजिटिव यहाँ पर आती हैं और y की वैल्यूज़ पॉजिटिव यहाँ पर आती हैं। सो इट्स मीन के पॉइंट इस वाले कोऑर्डिनेट में होगा। सो मीन कि ये पॉइंट फर्स्ट कोऑर्डिनेट में प्रेजेंट होगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने कहा है कि आपका x=0 हो चुका है, यानी x की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। y कहाँ होगा? सो y कुछ भी हो सकता है, y आपका यहाँ पर पॉजिटिव भी हो सकता है, y नेगेटिव भी हो सकता है। सो ये फैसला y एक्सिस का आंसर करेगा, y एक्सिस जिस पॉइंट के ऊपर है वही होगा। ठीक है, अगर मैं इसी को कहूँ कि अगर y आपका 0 हो गया है, यानी y की वैल्यू यहाँ पर आ गई है, तो आंसर आपका एक्स एक्सिस के इक्वल होगा। जो एक्स एक्सिस का पॉइंट होगा वही इसका आंसर आ सकता है। नेक्स्ट उन्होंने क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 अब हम लोग करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने कहा है कि एक्स आपका छोटा है 0 से, यानी नेगेटिव है, और वाई आपका कुछ इक्वल टू इस तरह है, यानी एक्स छोटा है सो एक्स की वैल्यू है नेगेटिव, एक्स नेगेटिव यहाँ पर होता है। ठीक है, और y उन्होंने कहा है बड़ा है और इज इक्वल टू है 0 के। सो इट्स मीन क्या है कि y भी आपका बड़ा है लेकिन थोड़ा सा वो है। तो y पॉजिटिव यहाँ होता है और x नेगेटिव यहाँ पर होता है। सो वो तकरीबन यहाँ पर आपका सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ पर बनता है। सो y यहाँ पर आपका x यहाँ पर नेगेटिव है और y पॉजिटिव आ जाता है। सो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ये प्रेजेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर वो हमें कह रहा है कि x और y दोनों इक्वल हो गए। लेट्स सपोज कि मैं कहती हूँ x मेरा था 0.2 और y मेरा 0.3 था। ठीक है, नहीं, दोनों पॉइंट्स इक्वल बनाने हैं ना। सो y भी मेरा 2 है, सो यहाँ पर बन जाएगा। सो इट्स मीन क्या है कि अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा या थर्ड बनेगा। लेट्स सपोज कि अगर वो पॉजिटिव में इक्वल है, अब वो नेगेटिव में इक्वल है, -2 भी है, x की वैल्यू भी -2 है। सो इनका पॉइंट यहाँ पर बनेगा यानी थर्ड में। सो फर्स्ट या थर्ड में इनकी पोजीशन हो सकती है जब x और y इक्वल होंगे। ठीक है, सो अब हम लोग चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने हमें कहा है कि x इस तरह इज इक्वल टू है y इस तरह। सो अब वो उसकी पोजीशन यही कह रहे हैं कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकती है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में भी बहुत क्वाड्रेंट इक्वल होंगे और पॉइंट इन द सेकंड और फोर्थ है बोथ क्वाड्रेंट इक्वल बट ऑपोजिट्स इन साइन। ठीक है, सो वो कहते हैं कि अगर ये है ना, उन्होंने बताया कि पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। सो ये कह रहे हैं कि बताएं ये कहाँ पर होंगे। देखिए, अगर x और y पॉजिटिव होंगे, इक्वल तो हैं ही हैं, अगर इनका साइन यानी पॉजिटिव या नेगेटिव होता है, दोनों पॉजिटिव हों दोनों नेगेटिव हों, अगर दोनों के साइन सेम होंगे तो इनकी जो पोजीशन आएगी वो फर्स्ट या थर्ड क्वाड्रेंट में आएगी। फर्स्ट में कब आएगी? जब दोनों पॉजिटिव होंगे। थर्ड में कब आएगी? जब दोनों नेगेटिव में होंगे। लेकिन अगर इनका साइन जो है वो हो जाते हैं ऑपोजिट, यानी एक एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, इस तरह से अगर आ जाते हैं तो इनके सेकेंड या फोर्थ क्वाड्रेंट बनेगा। सेकेंड या फोर्थ क्वाड्रेंट बनेगा। सेकेंड क्वाड्रेंट कब बनेगा? जब हमारे पास एक्स नेगेटिव होगा और वाई पॉजिटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट कब बनेगा? ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट तब बनेगा जब वाई नेगेटिव होगा और एक्स
पॉजिटिव आपका होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी की तरह का ही है बिल्कुल। सो अब हम लोग वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो उसमें उन्होंने कहा एक्स इज़ ग्रेटर देन 3, इस तरह से कुछ दिया, यानी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3 है, बट 3 को उन्होंने बताया नहीं कि पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो अब हमें पता नहीं है तो हम दोनों ड्रॉ कर देंगे। अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूँ, यहाँ 0 होता है, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 पॉजिटिव 3 हो गया। सो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव 3 हो सकती है, हम इसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे। हमें नहीं पता लाइन ने कहाँ जाना है, हम इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे। इधर से ड्रॉ करते हैं -1, यहाँ -2 और यहाँ -3। तो यहाँ पर मैंने -3 के ऊपर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर दिए हैं, क्योंकि हमें नहीं पता एक्स हमारा यहाँ पर पॉजिटिव 3 भी हो सकता है और एक्स हमारे पास -3 भी हो सकता है। दोनों के कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने ड्रॉ कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक्स एंड 2 है और वाई इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, सो वो कह रहे हैं कि एक्स आपका, तो वो आपसे पूछ रहे हैं कि ये कोऑर्डिनेट कहाँ पर होगा। सो एक्स यहाँ पर 0, यहाँ 1, यहाँ 2 आता है, यानी एक्स की वैल्यू 2 से आगे है। 2 यानी 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, यानी कि पॉइंट यहीं पर ही होगा। वाई उन्होंने कहा है हमारा पक्का पक्का 2 ही है। सो वाई की पॉइंट ये, लेट्स सपोज कि एक्स 3 है तो यहाँ पर बनेगा पॉइंट। सो इसका मतलब क्या है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, अच्छा लास्ट जो 10वां क्वेश्चन इसका दिया गया है, 10 क्वेश्चन, उन्होंने कहा है कि एक्स और वाई जो दोनों हैं वो ऑपोजिट साइन है, यानी एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, और वो किस क्वाड्रेंट में लाया करेगा। सो वो भी बताना बिल्कुल आसान है, हम लोग ड्रॉप करके भी आ चुके हैं कि एक्स पॉजिटिव होना चाहिए और वाई नेगेटिव होना चाहिए। ये ऐसा किस क्वाड्रेंट में है। देखिए एक्स यहाँ पर पॉजिटिव है लेकिन वाई यहाँ पर नेगेटिव है, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में ये सिचुएशन आ रही है। अब दूसरी सिचुएशन यही है कि एक्स नेगेटिव हो और वाई पॉजिटिव हो। अपोजिट साइन तब होते हैं ना। सो एक्स नेगेटिव यहाँ पर है और वाई पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव यहाँ पर है। तो यानी सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ये जो है शर्त पूरी हो रही है। तो आप बता देंगे कि फोर्थ और सेकंड क्वाड्रेंट ऐसा है कि जिसमें एक्स और वाई दोनों के ऑपोजिट साइंस होते हैं। सो ये हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन जो पार्ट है 4.1 का वो हम लोग कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। सो आई होप कि आप लोगों को आज की लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर क्वेश्चन सोल्व किया हुआ मिले और साथ में सोल्व करने का तरीका भी बता सकूँ। सो अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।